जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको नमन। I had requested Nikeji today to unmute you all for about 3 to 4 minutes or 5 minutes before we get into the sutras properly. As I said yesterday, that these questions had come to me, and these questions which had come, you know, मैंने आपसे कल कहा, I said to you yesterday, कि Upanishad is something that just should not be heard. So these 5 practices which I shared with you yesterday, ये आपके कल समझ में आई? मतलब खास तौर पर मैंने 3 जनों के प्रश्नों का उत्तर दिया, और उन 3 जनों से rest everybody would facilitate. और I think other people, they are unmuted. They can unmute. Whoever wants to unmute. Okay. So, because this was a little, हमने बहुत सारे उपवास किए हैं. We have done a lot of fasting. And but we have never done anything in our life which we say or which we yesterday discussed. It was sense deprivation, इंद्रिय उपवास. तो आप समझो कि जब आप किसी चीज को जीना चाहते हो, उसके लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, उसको समझने के लिए, उसको उतारने के लिए समथिंग. क्योंकि अगर कोई साधारण सी चीज होती तो शायद मैं एक ऐसी प्रोसेस की भी बात नहीं करता. तो इंदु जी ने और अंबिका जी ने और सुषमा जी ने, 3 जनों ने जब ये प्रश्न किया, तो यू कैन से दैट आई वाज टेम्प्टेड. मुझे नहीं लग रहा था, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल मीट, वी आर ओनली सीइंग ईच अदर ऑन स्क्रीन्स. So does anybody has any questions pertaining to it? That's why I said, if you have, you should unmute yourself and ask to me right now. Anybody? Or I can get into the sutras and we can just start. So I think there are no questions. If people have understood exactly what was said to them, कि बहुत गहरी गहरी श्वास लेनी. The more deeper you breathe, the intensity of your sleep will increase, but the expansion will be limited. Then you will not be able to sleep for 8 hours. And when do you sleep for 8 hours? When there is no intensity in your sleep. You just keep on lying down. You laze off. And then I asked you that you should eat very little food. I asked you to be very attentive. And attentive is a very modern concept these days when we say mindfulness. You have to just be very attentive to breathe in and breathe out. Lekin the most important part is jahan the worst that happens. I just see Ambika ji, just joining in, so she was not even there when we were asking, that these people had asked the question. But when I said that sense deprivation was the most important, इंद्रिय उपवास, ये आप घर में रहते भी कर सकते. And imagine the entire chaos that we create, जो हम पागलपन अपने परिवारों में इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, we this grows. वो बिल्कुल शांति की तरफ कैसे जा सकता है? आप समझ रहे हैं, it is not possible not to look. But I said to you, अगर आप मेरे साथ ये वर्कशॉप किसी कैलाश पर कर रहे होते, या किसी और रिसोर्ट पे कर रहे होते, या हम कहीं वर्कशॉप कर रहे होते, वहां कर रहे होते,
तो मैं आप सबके को एक छोटा सा किट देता जिसमें पट्टी भी होती आंख में बांधने के लिए, क्योंकि वैसे ही कोरोना ने फेस मास्क दे दिए हैं, मैं आपको आई मास्क और दे देता शायद, कि आप आईज के ऊपर भी मास्क लगा लें, कि न बोलें और न देखें, क्योंकि जितना भी एवरीथिंग दैट कम्स और गोज इन इज गोइंग थ्रू योर आईज, वो अंदर से बाहर ही बाहर जा रहा है, बाहर से कुछ अंदर भी जाए। और आप समझना, जब आंखें शीतल न हो, 7 दिन भी अगर आपने, इवन जस्ट फॉर 7 days, if you do these 5 ways that we shared yesterday, the whole idea of this life will change. The whole concept will change. You should just not give up. क्यों हर एक को कान दे रहे? तो उस किट में थोड़े से कपास यानी रुई भी होती, जो ठूस लो कि मुझे सुननी नहीं है बकवास, अपनी बकवास सुनानी नहीं है और दूसरे की बकवास सुननी नहीं है। तो सूत्र क्या कहता है? And let me tell you, the other shlokas which are very important, we'll give a lot of emphasis on them. But when we are saying that, the first one is so important because the entire ईशावास्य उपनिषद किसमें है? पूरा ईशावास्य का एसेंस जो है वो केवल इतने से में है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। When the rishis of the Upanishads have recited this mantra and they say this is final, ho gayi baat khatam. The first Om was the beginning and the last 3 Om आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को भी शांति प्रदान करे। Let peace prevail. But suppose if this, I literally want, see, every time when I come between all of you, मैं चाहता हूं ये डायलॉग हो जाए, आप मेरे साथ थोड़ी कुश्ती करो, दंगल करो, विचारों की, प्रश्नावली की। There can be possibilities, there are things I have not even thought of. जब मैं ये 5 पहलू बता रहा था तो इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन आपके प्रश्न ने इंड्यूस किया कि मैं इसको भी आपके बीच में प्रस्तुत करूं। तो if I ask you one question, कि इस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोक को आप सबसे नजदीक कौन सी चीज से समझ सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है इन योर लाइफ that you can understand? इस श्लोक को आप उतार सकते हैं जीवन में। ये कैसे आप उसको भीतर लाएंगे? What is the closest thing कि आपके पास भरा पड़ा हो, आपसे सारा उलीच लिया जाए, आपसे सारा ले लिया जाए, सब कुछ आप देने को तैयार हो जाओ, तब भी आपके पास कमी न रहे। What is that one essence? What is that one thing? It is प्रेम। देखो, अंग्रेजी के अंदर बड़ी दिक्कत है। जब मैं विचार भी एक बात है, लेकिन मैं आपको विचार से नहीं इसको समझाना चाहता। आप इसको विचार से समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि विचार के साथ बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, बहुत उतार, बहुत चढ़ाव भी मौजूद हैं। आपके पास इस सूत्र को समझने के लिए जो सबसे निकटतम, सबसे अद्भुत, सबसे विलक्षण जो चीज है वो है प्रेम। आप पूरा का पूरा उलीच दीजिए, पूरा का पूरा बांट दीजिए, आप कभी महसूस नहीं करेंगे कि आप खाली हो गए। आप कभी, असंभव है
कि आप पूरा दे देने के बाद भी ये कल्पना करें कि उसमें से सब कुछ निकल गया, कि आपके पास प्रेम दे दिया तो कम हो गया, असंभव है। आप पूरा दे डालते हैं तब भी आपके पास कभी कमी नहीं होती। आप देखते हैं आपकी का विवाह जब हुआ तो आपने जहां देना आवश्यक था वहां पूरा दिया, लेकिन जब आप मां बनी तो वहां पर भी आपने पूरा दे दिया, लेकिन आपके प्रेम के भीतर उस तत्व को ये अनुभव भी नहीं हुआ कि नहीं नहीं मेरे में से एक स्रोत निकले, और उन स्रोतों में ये स्रोत ज्यादा भरकर चल रहा था, क्योंकि जब प्रेम बहना प्रारंभ करता है दैट इज इक्वल, वो देने से कभी कम नहीं होता। और एक और बात ध्यान रखने की, नहीं तो आप कभी प्रेम नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको लगे कि मैंने दिया और कम हो गया, तो आप समझना आप न तो प्रेम को जान पाए, न आपने जो दिया था वो प्रेम था। ये एक सबसे बड़ी अवस्था है कि जब आपको ये लगे कि आपने दिया और आपके पास कम हो गया, तो और आप ये कहते रहे मैंने बड़ा प्रेम किया, मैंने बड़ा प्रेम किया, बड़ी बखान होती है इस बात की। इसका मतलब ये है कि आप जानते ही नहीं है कि आपने जो दिया वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता था। Then you have not understood. तो जो इस सूत्र को समझने के लिए मनुष्यता के पास, इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पास जो जो क्लोजेस्ट एसेंस है वो केवल प्रेम है। उतना ही बच जाता है जितना आप दे देते हो, जितना आप उलीचते हो, जितना आप में देने का सामर्थ्य है, आप पाते हो भरा पड़ा है, और इसको और कोई नहीं समझा सकता। Means if you have to understand this, you will have to listen to द्रौपदी, क्योंकि जिस समय द्रौपदी को 5 पतियों के बीच में बांटा गया, the just that time द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनाया गया, तो द्रौपदी उस तत्व को समझ गई कि कभी भी प्रेम बांटने से, कभी देने से कम नहीं होता। उसने उस पल वो सती क्यों बनी, उसे सती का दर्जा प्राप्त क्यों हुआ? उसे सती का दर्जा प्राप्त इसलिए हुआ क्योंकि उस पल, उस क्षण उसने एक बात समझ ली कि मुझसे जो जिसको प्राप्त होगा वो पूरा होगा। She was not trying to be a perfect wife. She was only trying to be a whole, a total wife. अब प्रॉब्लम कहां है? परफेक्शनिज्म के साथ बड़ी इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोसेंट्रिक, इगोमैनियक की अवस्थाएं प्रकट हो जाती, और हम सारे इस दुनिया में सिवाय परफेक्ट होल होने की चेष्टा नहीं कर रहे। और ईशावास्य कह रहा है एग्जिस्टेंस इज होल, एग्जिस्टेंस इज नेवर परफेक्ट, बिकॉज परफेक्शनिज्म जो है वो इधर तो पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी। परफेक्शनिज्म विल ऑलवेज बी इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, बट होलनेस विल उस पल, उस क्षण जो होलनेस है वो उस पल पूरी की पूरी। तो आप समझना, जब आपके सिवाय प्रेम के अलावा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन जिस अनुभव से आप पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते को पूरी तरह से उतार सकते हैं कि एक जगह पर मैं सब कुछ दे दूं और फिर भी बच जाए, तो केवल प्रेम से समझ सकते हैं। लेकिन ना समझ लोग, पागल लोग जो ये समझते हैं कि प्रेम को पॉजेसिवनेस की तरह से लेते हैं, प्रेम को लव को लस्ट की तरह से समझते हैं, तो वो सोचते हैं मैंने कितना दिया और देखो मेरे को कुछ नहीं मिला, और मैंने कितना दिया मेरे पास देने को कुछ नहीं। तो मैं उन सब प्रेमियों से कहना चाहूंगा, तुमने प्रेम नहीं दिया, तुमने व्यापार किया। और कोई भी चीज जो मेजरेबल हो वो इमेजरेबल को नाप नहीं सकती। आप कभी प्रेम को नाप नहीं सकते। द्रौपदी ने किस बात को कहा? जैसे ही वो 5 पतियों के बीच में बटी, द मोमेंट शी वाज डिवाइडेड इनटू 5 पीपल,
शी सेज ना, मैं जिस पल, जिस क्षण, जिस वर्ष जिसकी पत्नी रहूंगी, उस व्यक्ति को उस रिलेशनशिप में उस पूर्णता का अनुभव होगा जो एक पत्नी से अनुभव होना चाहिए। तब उसको पता चला कि दिस इज हाउ शी वुड लाइक टू जस्ट गिव लव, एंड वो कहीं कम न हुआ। जब कृष्ण की बारी आई तो कृष्ण के पास के लिए भी द्रौपदी के पास अपार हृदय में प्रेम था। जब उसके पुत्र हुए और मर भी गए तब भी था, और जब वनवास हुआ तो वहां पर जितने जीव जंतुओं को वो अक्षय पात्र में से रोज कुछ न कुछ अन्न अनाज कुछ भी खिलाती थी, उस तक से भी सब कुछ प्राप्त। ये ब्यूटी है। और ध्यान रहे, जो मेजरेबल है वो घट जाएगा। जो कुछ भी आपके पास जिसको आप मेजरेबल कहते हैं वो घट सकता है। जो नापा जा सकता है उसमें कुछ भी निकालिएगा तो वो घट जाएगा। कुबेर का खजाना भी अगर हो, उसमें से कौड़ी भी अगर निकाल लोगे तो उसमें से कुछ कमी हो जाएगी, भले ही उसको पता ना चले, क्योंकि वहां पर एक ऐसी अद्भुत संपत्ति है जिसके थोड़ा सा एक आध कौड़ी निकालने से, लेकिन उसके अंदर जो है उसकी गिनती अगर कोई करता है तो उस एक कौड़ी की गिनती होगी कि ये निकल गई। क्योंकि पहले दिन मुझे लगा उपनिषद की परिभाषा करूं, हम प्रवेश इसमें करने जाए। और देखो, जब भी पहला सूत्र जो होता है, जब हम श्रीमद् भागवत में किसी ऐसे श्लोक को लेते हैं अपनी कथा को करते हुए, तो आई लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर वहां बात क्लियर हो जाए तो आगे की सफर बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही आप लोगों ने क्या किया कि भाई उपनिषद को इतना इतना डिफिकल्ट, इतना ट्रबलसम सोच लिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, वेदांत का अंत, वेद के अंत के पश्चात उत्थान की यात्रा प्रारंभ। उपनिषद क्या है? जहां वेद पूरे होते हैं, जहां वेद का अंत होता है, उपनिषद की शुरुआत वहां से। विलक्षणता है इसमें, क्योंकि वो आपको पूजा करना नहीं सिखाएगा। उपनिषद में कहीं नहीं है कि आप इसकी पूजा ऐसे करें, इसको ऐसे रखें ना, ये नहीं सिखाया जाएगा। आपका परिचय आपसे करा दिया जाएगा। आप बताइए कहां पर हमने सुना कि तुम पूर्ण हो? और जो आपको प्राप्त होगा, जहां से आप प्रकट होंगे, उसकी जो निष्पत्ति है वो पूर्णता है। अगर आपको कभी कभी लगे कि प्रेम देने से कुछ कम हो गया हो, और सबको लगा कि करीब करीब सबको, इसलिए तो हम प्रेम की जो है वो मलकियत करना प्रारंभ कर देते हैं, हम पोजेसिवनेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जहां हम देंगे अगर ये कहीं और बट गया तो कम हो जाएगा। सारे संबंधों में जो खिंचाव है इसलिए क्योंकि प्रेम को उस एसेंस की दृष्टि से नहीं देखा। और एक और बात समझ लेनी है, जो व्यक्ति एक बार प्रेम को समझ गया, जिसने प्रेम को समझ लिया, वह उसको परमात्मा को समझने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर एक बार उसे प्रेम का तत्व समझ में आ गया तो फिर वो उस फिक्र में ना पड़ेगा कि परमात्मा को समझूं, क्योंकि पहली बार जीवन में अनुभव होगा कि उसने परमात्मा को ही स्वीकार। ही इज अंडरस्टूड गॉड, ही इज लिविंग गॉड। क्योंकि उस पल, उस क्षण फिर कोई कमी नहीं रह जाती, कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता उस व्यक्ति में और उस व्यक्तित्व में, उस पर्सन में और उस पर्सनालिटी में। क्यों? क्योंकि लव और गॉड है जो सिनोनिमस है। जिसने पहचाना प्रेम को वो कहेगा परमात्मा न भी मिले तो चलेगा, क्योंकि जो मिला वो साक्षात परमात्मा है। हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि प्रेम तो मिल गया, लेकिन इसके साथ किस चीज का इंट्रोडक्शन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते में साक्षात जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द हायर। आप अभी बड़े लोअर इंटेंसिटी पर जी रहे थे। मैं किसी को श्वास लेते देखूं तो मैं उससे, वृंदावन में आते हैं आजकल तो हम कहते हैं अरे यार तुम सांस ले रहे हो, बड़े मरे मरे से सांस ले रहे।
अरे तुम प्रेम कर रहे हो, तुम बड़े मरे मरे से प्रेम कर रहे हो, दो पति पत्नियों को संग रख दो एक घर के अंदर, तो कैसा लगे कि दोनों भिखारियों को संग रख दिया, एक एक से प्रेम मांग रहा है, दूसरा दूसरे से प्रेम, दोनों मांग रहे हैं, लेकिन जो देना है, जिससे पता चले कि कमी नहीं हुई, जिससे पता चले कि भरा पड़ा था, पता ही ना चला। ध्यान रहे, जिस दिन ऐसा अनुभव हो, मेरे पास ऐसा प्रेम है जो मैं दे भी डालूं तो कभी कमी नहीं हो सकती, उस दिन दूसरे से प्रेम की मांग जो है वो क्षीण हो जाती है। जिस दिन ये अनुभव हो जाए, जरा श्रवण करना, कभी कभी कोई शब्द बोलने के पश्चात मुझे लगता है कि मैं आपसे कहूं इसको जरा श्रवण करना, क्योंकि अगर आपको अनुभव हो जाए कि मैं जितना भी दे डालूं कभी कमी नहीं पड़ सकती मेरे पास, आई विल नेवर फील शॉर्ट ऑफ इट, तो आपकी जो मांग है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है कि कोई मुझे करे, वो सारी डिजायर भी उसी पर क्षीण हो जाती है। वो डिजायर जो है वो क्षीण हो जाती है, क्योंकि जितना ही प्रेम मिल जाए मेरा बढ़ नहीं सकता, और निकल जाए तो घट नहीं सकता। मिल जाए तो बढ़ेगा नहीं, यही तो परम तत्व है। आप एक बात समझो कि परमात्मा से कुछ निकल आए तो उसमें कमी ना हो, और उसमें कुछ कर दिया जाए तो उसमें कोई बढ़ोतरी ना हो, तभी तो पूर्णता प्रकट होगी। एब्सोल्यूट हायर मैथमेटिक्स है, और इस हायर मैथमेटिक्स को हम समझ नहीं पाए, और अगर इस हायर मैथमेटिक्स को हम समझ पाते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी को प्रेम के सूत्र का पता चल जाएगा, एक बार, केवल एक बार अगर आपको इस सूत्र का पता चल जाए, तो उसे दोहरी बातों का भी पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं कितना ही दूं, घट नहीं सकता। आप अपने आप को देने में कम जो करते हो, थोड़ी कमी कर देते हो, पूरा का पूरा नहीं दे पाते, इसलिए कि घर आपको भीतर एक घबराहट होती है कि कहीं दे दूं और कहीं मेरे पास कम हो जाए। जिस किसी को ये भाव उठेगा कि मेरे पास कम हो जाए, तो आप समझना उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि उसके पास अथाह है, असीम है, अनंत है। अभी यहां पर पूजा ने मैसेज पे लिखा कि लव इज इनफाइनाइट, यस, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, आप उस इनफाइनाइट लव को फाइनाइट मान के जी रहे, आप उसे मेजर करने की चेष्टा कर रहे हो। उस मेजर के जो 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 बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो पोजेसिवनेस है, वो लस्ट है, वो डिजायर्स है, और सारे रिलेशनशिप्स में केओस है। लेकिन अगर यहां पर पता चल जाए तो बात अलग हो जाए। इस बात को एक और दिशा में समझने की कोशिश की जा सकती है, सागर की दृष्टि में। आप देखते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां जाकर सागर में मिल रही हैं। हर पल सागर बढ़ रहा है, और हर पल सागर घट भी रहा है, क्योंकि ऊपर बदलियां उठती हैं, सारे के सारे जितने भी ये वो हैं, नीचे से भाप उठती है, और फिर वो बादल लेकर चले जाते हैं उस जल को अपने पास ऊपर किसी और स्थान पर ऊपर से वृष्टि करने के लिए। अलग अलग तरीके हैं जिससे पूरा का पूरा, जिसको हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं, सब कुछ घट और बढ़ रहा है। लेकिन सागर को भी अगर समझ लिया जाए तो सागर भी विराट अवश्य है, पर अनंत नहीं है। सी दिस इज, आज के बाद हम ओम पूर्ण मद को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आज जो यहाँ प्रथम सूत्र है उसकी बात यही आज विश्राम हो जानी चाहिए। थर्ड डे है, और जैसा आप सबको ज्ञात है कि इस बार का जो सेशन रखा है वो मंडे टू फ्राइडे रखा है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे को मुलाकात होगी।
तो ऑब्वियस है कि देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो अगर सागर के पहलू से इसको समझे तो सागर विराट अवश्य है पर अनंत नहीं है। और जब सागर से इस बात को समझ सकते हैं तो आप समझो कि आंखों के इंद्रियों के जगत में हमारा सागर घटता बढ़ता है, बहुत बड़ा है, अनंत नहीं है, विराट है, नदियां गिरती हैं, आकाश उससे पानी भरता है, उलीझते रहते हैं, कमी नहीं आती, अभाव नहीं आता, फिर भी घटता है, बढ़ता है, विराट है, अनंत नहीं। फिर भी घटना और बढ़ना तो होता है लेकिन अनंत नहीं है, असीम नहीं है, विराट है। सागर में इतनी नदियां गिरती हैं, कोई इंच भर भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कह दिया जाए सागर वैसा का वैसा रहता है। हर रोज उसमें से कितना कुछ सूरज भी जो है, सूर्य भी जो है, वो उलीझते हैं, किरणों को पानी देते हैं, आकाश में जितने बादल भर जाते हैं सब सागर की देन हो जाती है, फिर भी सागर वैसा का वैसा रह जाता है। और जब सागर वैसा का वैसा, फिर भी मैं कहूं सागर का अनुभव सच में घटने बढ़ने का नहीं है, लेकिन घटता बढ़ता है, लेकिन इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं चलता। आप अगर सागर से समझें तो सागर को भी उपमा क्या दी गई? सागर को भी उपमा दी गई कि वो विराट है पर वो अनंत नहीं है। आप अनंत किसको मानते हैं? कि आकाश को अनंत। इस ओम पूर्ण मदः पूर्णात पूर्ण मुदच्यते को अगर ढंग से समझें तो इसको आकाश की दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। असीम दिखता है, अनंत दिखता है, लेकिन जब कहीं कोई व्यक्ति एक भूमि पर अपना एक घर बना लेता है तो उस घर को बनाए हुए के साथ जो उसमें आकाश आ जाता है, उस जगह पर दूसरा घर नहीं बनाया जा सकता। आकाश की एक दूसरी स्थिति है, सब कुछ आकाश में है। आकाश का अर्थ है सब कुछ है, आकाश स्पेस जिसमें सारी चीजें हैं, इसलिए आकाश किसी में नहीं हो सकता। अगर हम सोचते हैं आकाश को भी होने के लिए किसी का होना पड़े, आकाश में सब कुछ है, आकाश के अंदर सब कुछ विद्यमान हो गया, लेकिन फिर भी आकाश सब में मौजूद नहीं है। मौजूद होने के बावजूद भी हर चीज के अंदर पूरा आकाश समा नहीं सकता, छोटा छोटा आकाश एक एक स्थान पर आ जाता है। आकाश सबको घेरे हुए। मजेदार बात है कि आकाश सबको घेरे हुए, लेकिन आकाश स्वयं में अनघिरा है। और जब आकाश अनघिरा है, इसका अर्थ है जिसमें सब है पर वो किसी में नहीं, जिसमें सब कुछ है पर वो किसी में नहीं। ये मैं पूर्ण मदः पूर्ण मिदम को अगर समझाने की अवस्था को आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर, कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिन विशालता की, जिन विराटता की आप बात समझते हो, कि आपकी दृष्टि में सागर बहुत बड़ा है, 70% स्पेस ऑक्यूपाई करता है अर्थ। आकाश है जिसमें सब कुछ है, कितना विशाल है, सारे ग्रह उपग्रह मंडल आदि सब उसमें है, लेकिन फिर भी वो किसी में नहीं है, वो अनघिरा है। लेकिन अगर इन दो पहलुओं से समझने की चेष्टा करें, आप मकान बना लेते हैं, आप अपना महल खड़ा कर लेते हैं, और महल अगर गिर जाए, कल खंडर हो जाए, मिट्टी होकर नीचे गिर जाए, आकाश चूमने वाले महल जमीन पर होकर खाक हो जाए, आकाश को कभी पता न चलेगा कि उसके नीचे क्या बना और कौन सी चीज उसके नीचे विगलित हो गई, कौन सी चीज उसके अंदर बैठी थी और वो बिल्कुल शांत हो गई। आकाश के बीच में हजारों चीज बनती हैं और हजारों चीज मिटती हैं, कितनी चीजें प्रकट होती हैं, कितनी चीजों का लय होता है, लेकिन आकाश को किसी बात का पता नहीं चलता। कोई भी चीज हो जाए फिर भी आकाश कितना ही अछूता मालूम पड़ता हो, कितना ही अस्पर्शित मालूम पड़ता हो, हमारे निर्माण से फिर भी हमारे साधारण से अनुभव। एक बात निश्चित है कि जहां एक व्यक्ति ने जमीन पर कुछ बना लिया और उस बिल्डिंग के आकार में, उसके आंगन के भीतर से जो आकाश दिखता है वो उस व्यक्ति का है, और अगर आप वहां बैठना चाहें तो आप बैठ न सकेंगे, क्योंकि उस आकाश के नीचे अवस्थित होकर एक ही बैठ सकता है एक बार।
वो आकाश भी किसी ना किसी परिस्थितिवश घिर जाता है। इसलिए तो मकान हमें ऊपर उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि धरती के ऊपर कोई और चीज नहीं बन सकती, एक जमीन बनाकर दूसरा बनाया जा सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की तरफ उठ रहे हैं। इसलिए अगर बड़े गौर से देखा जाए, आकाश भी कहीं ना कहीं भरता मालूम पड़ता है। लेकिन इतना आपसे कहना चाहता हूं इस बात को, कि अगर आप इस ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश हमारे साथ कर रहे हैं, इन ऋषियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो आज की मानसिकता से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आकाश की मानसिकता से, जो विराट है पर अनंत नहीं है। आप सागर है, विराट है पर वो अनंत नहीं है। आप किस आधारशिला को लेकर चल सकते हैं? कि प्रेम तत्व को ले सकते हैं और परमात्मा को ले सकते हैं। परमात्मा इतना भी नहीं भरता जितना जितना आकाश या सागर भरता है। ये बात कहना चाहता था। इस बात को कहने के लिए मुझे सागर और आकाश की उपमा देनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं सीधा कहता परमात्मा को आप भर नहीं सकते, तो आपके समझ में शायद थोड़ी धीरे से आती बात। तो आप समझो, कभी कभी एक घुमाकर बात कहने की, और मुझे तो बड़ा मजा आता है जब कोई एक छोटी सी बात कहनी हो जो बड़ी गंभीर हो, जो बड़ी डीप हो, और उसको मैं पूरी तरह से घुमाकर उसकी चारों तरफ प्रदक्षिणा कर कर जब उस केंद्र बिंदु पर पहुंचूं, जैसे कोई साइक्लोन चल रहा हो, आपको उसमें सब कुछ चलता हुआ चक्रवात की तरह से दिख रहा हो, लेकिन उसके भीतर में बीच में जो सेंटर है, वो सेंटर कहीं नहीं हिल रहा है। वो जो सेंटर है, उसके चारों तरफ सब कुछ हिल रहा है। तो आप समझना, सब कुछ जो मेजरेबल है, उसके बीच के केंद्र में कोई एक ऐसी चीज होना आवश्यक है जो साक्षात आपको बता पाए कि वो इमेजरेबल। आप इस सागर को नाप सकते हैं, सागर उलीचता है, सागर घटता बढ़ता है। आकाश भी किसी मायने में हमारी सोच में, मनस शास्त्रियों की भाषा में कहीं ना कहीं भरता है, कहीं ना कहीं घटता है, कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? जो सदैव एक्सपैंड कर रहा हो, यानी जब ब्रह्मांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा हो, और आप समझो हम कहें एक्सपैंड, जो जिसमें क्षमता है। ब्रह्मांड का ब्री का मतलब है जिस धातु से बना है, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। और उस एक्सपेंशन से समझ में आता है कि ब्रह्मांड की भी बात पूरी नहीं हुई, इस आकाश की भी बात पूरी नहीं हो पाई। वो पूर्ण मधा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते की श्रेणी में नहीं आ रहे। तो भाई, इस श्रेणी में कौन आ सकता है? केवल एक ही चीज आ सकती है, वो है तुम उससे अछूते हो, तुम उसकी पूजा कर सकते हो, पर तुम्हें पता नहीं उसने तुम्हें जन्म दिया, तुम आए इस धरती पर, उसने पूरी की पूरी अपनी पोटेंशियलिटी जो है वो तुम में डालकर भेजी थी। उसने कह दिया मुझसे कुछ निकलेगा, तो अपूर्ण कैसे निकले? तुम अपने आप को बिना जीने 60-70 वर्ष निकाल दिए। अगर तुम जान जाते अपने आप को कि मैं किस मायने में पूर्ण हूं, तो अभी तक कोई और इधर उधर की भटकाव नहीं होता, क्योस नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। अरे हम जिस जेलसी में जी रहे हैं, जेलसी एनवे नहीं होता। जिसको पता चल जाता अरे उससे निकला हूं, वो पूर्णता का प्रतीक है। उस पूर्ण ने मुझ पूर्ण को निकाला है, उस पूर्ण ने इस पूर्ण को प्रकट किया है। आप समझो, मनुष्यता की, मानवता की कितनी बड़ी भूल हो सकती है कि जहां पर पूरी सृष्टि उसके साथ मौजूद हो और वो अपने आप को अपूर्ण मानकर चलता। ये विशेषता है। ये उपनिषद के ऋषि कह सकते हैं। और जब वो ऋषि कहना प्रारंभ करते हैं, तो बात हो जाती है परमात्मा इतना भी नहीं भरता जितना तुम्हारे सागर भरते हैं, आकाश भरता है, ब्रह्मांड तुम्हारा सतत एक्सपेंड करता है। परमात्मा इतना भी नहीं भरता। सागर मैंने कहा बहुत छोटा है परमात्मा के हिसाब से, सागर बहुत छोटा है परमात्मा के हिसाब से, और हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है।
लेकिन उसके हिसाब से परमात्मा कुछ भी नहीं है। हम जैसे बातों में कह देते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो ऐसे समझ लो कि परमात्मा कह दे वो चुल्लू भर पानी है। हाथ में ले लिया हो इतना सा सागर है। अगर उस परमात्मा की बात करी जाए, गंगा और ब्रह्मपुत्रों के हिसाब में सागर बहुत बड़ा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके गिरने में फिर भी अंतर पड़ता है, नापतोल में नहीं आता, फिर भी कहीं कोई कह सकता है, किसी ने नापाई तो है कि इस पृथ्वी का 70% जो भाग है वो सिर्फ सागर से भरा हुआ है। तो कहीं तो नपा है। जो भी मेजरेबल है उसके साथ अवस्था दूसरी है। जिसके साथ मेजरेबिलिटी हो रही है, जिसको आप नाप सकते हैं, परमात्मा पर एक और छलांग लगानी पड़ेगी। तुमने अभी बहुत सारी जगह से छलांग तुम्हारी छलांग अभी पर्याप्त नहीं है। तुमने सब चीजों में जाकर देख लिया, तुमने विशालता और विराटता और असीमता की परिभाषाएं अपनी बना ली, लेकिन जिस पल तुम्हें उस असीम अनंत का पता चले, तब जाकर तुम मानोगे कि इस पल और इस क्षण तुम्हारा पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई परमात्मा में छलांग लगानी पड़ेगी। वहां सारा तर्क जो है वो गिर जाएगा। परमात्मा यानी अस्तित्व। See, now I'm about to make you understand something. परमात्मा यानी अस्तित्व, परमात्मा यानी एग्जिस्टेंस। और इसको इजीएस्ट भाषा में अगर हम समझना चाहें तो किसी वस्तु की इजनेस, हैपन, किसी वस्तु की इजनेस, किसी वस्तु का हैपन, उसको यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय अ थिंग कंप्लीटली। आप कभी कोई वस्तु पूरी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक पत्थर के टुकड़े को लीजिए, उसे डिस्ट्रॉय करिए, आप उसे तोड़िए तो वो राख बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी को आप पानी में डालिए तो भी वो नीचे नीचे रिसती जाकर कहीं बैठ जाएगी। उस पत्थर के इजनेस को, उस पत्थर के हैपन को आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये जो इजनेस है, ये इजनेस ही परमात्मा है, ये इजनेस ही एग्जिस्टेंस है। और अगर इस बात को नहीं समझा तो आप समझो पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोक सुनना भी बेकार। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब वन वे ट्रैफिक करते हैं, मैं रोज आपसे एक बात कहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू पिंच यू एवरी डे, क्योंकि अगर संवाद दूसरे प्रकार का होना है तो मुझे आपकी तरफ से प्रश्नावली आवश्यकता होगी, आपकी जिज्ञासा भी चाहिए होगी, और आप जो नहीं समझे वो बात भी चाहिए होगी। तो इजनेस को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी कोयले को मिटाना चाहें, जला दें तो राख बन जाएगा, पानी में डालें तो तैरने लग जाएगा, लेकिन उसकी इजनेस को नहीं ले जा पाएंगे। परमात्मा का अर्थ क्या है? What is the meaning of परमात्मा? परमात्मा का अर्थ है सारी चीजों के जो हैपन है, जो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ के भीतर जो हैपन है, इजनेस है, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो होना है, वही कितनी ही चीजें बनती चली जाए, उसको आप किसी और रूप में यूज कर सकते, आप उसको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, और उसे होने से कुछ जुड़ता नहीं है। आप एक बात बड़ी अवस्था की, बड़ी विलक्षण, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा being third day and we are sitting on the first श्लोक, और ये भी आपसे कहा कि अब तक के हमारे सनातनीय उपनिषदों में ये जो जितने इस धर्म के अंदर हमारे उपनिषदों की रचना, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन इज ईशावास्य, but one of the deepest one is also ईशावास्य उपनिषद। और आप समझना, आप पानी पर तो रेखा खींच सकते। आपने कोशिश करी होगी कि स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, कि नदी पे पहुंच गए, कि गंगा पहुंच गए, और वहां पहुंचकर भी अगर आप चाहो तो आप एक पानी पर रेखा खींचने की चेष्टा करो तो थोड़ी देर के लिए तो बन जाती। तुम परमात्मा पे उतनी देर के लिए भी रेखा भी नहीं बना सकते।
तुम परमात्मा तत्व को देखो, हम इतनी कथा सुने, हम इतने लेक्चर्स सुने, हम सब कुछ सुने, और जिसकी इज़पन की चर्चा हो रही हो, उस इज़पन से हमारा आमना सामना रूबरू ना हो पाए, तो इस पूरे अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, कथाओं का, लेक्चर्स का, टॉक्स का, वर्कशॉप्स का फायदा क्या? आप उस इजनेस के साथ वाकिफ ना हो पाओ जो आपका एग्जिस्टेंस है। लेकिन परमात्मा पर इस सारे अस्तित्व से इतनी भी रेखा नहीं खींची जा सकती जो आप पानी पर खींच देते हैं। इसलिए उपनिषद का पहला वचन, इसलिए उपनिषद कहता है कि पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण से ये पूर्ण निकला, वह अज्ञात है, यह ज्ञात है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। What is visible, वह उससे निकला जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उससे निकला जो हमारे अनुभव में नहीं आया। जो हमारे अनुभव में नहीं आया, इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेना आवश्यक है। जो भी हमारे अनुभव में आता है वह सदा उससे निकलता है। जो भी कुछ आपके अनुभव में आता है वो सदा उससे निकलता है। जो हमारे अनुभव में नहीं आता और जो हमें दिखाई पड़ता है वह उससे निकलता है। जो अदृश्य है वो उससे निकलता है, जो दृश्य है वो भी उससे निकलता है। वह अज्ञात से निकलता है, जो हम परिचित हैं अपरिचित से आता है। जो भी कुछ चारों तरफ परिचित दिख रहा, सारे रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे अगर आप इस बात को थोड़ा आत्मा के भीतर, अपने भीतर, हम बार बार इनर चर्चा करते हैं। ये जितना कुछ परिचित जगत है, ये सब का आधारभूत जो है वो अपरिचितता है। वो अपरिचितता ही एग्जिस्टेंस है। वो सब जगह मौजूद है लेकिन अपरिचित है। जिस दिन वो अपरिचित परिचित हो जाएगा, उस दिन आपका साक्षात्कार साक्षात परमात्मा से। एक बीज हम बो देते हैं और उस बीज से एक वृक्ष निकल आता है। एक बीज हम बो देते हैं और उस बीज में से एक वृक्ष निकल आता है। बीज को हम तोड़ दें, तोड़ तोड़ कर खंड खंड कर दें, और कहीं पर भी वृक्ष का पता नहीं चला, फूलों का पता नहीं चला, पत्तों का पता नहीं चला, उसमें से किसी चीज का पता नहीं चला। प्रतिपल अदृश्य दृश्य में रूपांतरित होता रहता है। प्रतिपल क्षण क्षण अदृश्य जो है वो दृश्य में विद्यमान होता रहता है। दृश्य अदृश्य में खोता चला जाता है। अदृश्य दृश्य बन रहा है तो प्रकृति दिखती है, अदृश्य परमात्मा है। और जब दृश्य अदृश्य होता है तो आप समझो प्रकृति जब विलीन होती है तो परमात्मा में जाकर भी प्रतिपल सीमाओं में असीम आता है और प्रतिपल सीमाओं से असीम वापस आता है। ये जो कांस्टेंट मूवमेंट है असीम और सीमित का, दृश्य और अदृश्य का, मेजरेबल और इमेजरेबल का, ठीक ऐसे ही हमारी श्वास जो भीतर जाती है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है उसकी रचना में। उसकी रचना बिल्कुल बराबर जैसी है। जब प्रारंभ होता है, एक कहा जाता है कि जैसे ही आप श्वास लेते हो तो सृष्टि और प्रलय आपके श्वास के भीतर लेने और बाहर छोड़ने में प्रतिपल घट रही है। तुम समझना सृष्टि तब तक विद्यमान है, तब तक सब कुछ दृश्य है जब तक परमात्मा श्वास ले रहे हैं। और जिस समय परमात्मा ने उलीचना, उस श्वास को छोड़ना प्रारंभ किया, उस पल को प्रलय कहते हैं। यहां पर भी हो रही है इस शरीर में कॉन्स्टेंटली, पर अनुभव नहीं हो रही। क्यों? निकलने के साथ तुम झट से ले लेते हो। उसके लेने और छोड़ने में बहुत बड़ा अंतराल है। जब वो छोड़ता है तो उसको प्रलय कहते हैं। आप छोड़ते हो वो लघु प्रलय है, जब वो छोड़ता है तो महाप्रलय हो जाती है। दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड। इस सूत्र में दोनों बातें कही गई हैं और इतनी विलक्षणता से कही गई हैं
कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, पूर्ण से पूर्ण निकल आता है तो उसके पीछे भी पूर्ण शेष रह जाता है, उसके अंदर भी, उसके भीतर भी, उसके बाद भी पूर्ण शेष रह जाता है, पूर्ण में पूर्ण लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही रह जाता है, वह प्रकट है। विलक्षणता इस बात की है कि सब कुछ निकल जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी रह जाता है। परमात्मा इतना करके भी अकर्ता बना। थोड़ी सी कोई बात किसी की चुभ जानी चाहिए, एक छोटी सी बात कहनी बड़ी आवश्यक है कि यहां पर अगर मैं बैठकर आपसे बात करूं पुचकारने की, तुम्हारी ठोड़ियों पर हाथ फेरने की, तो तुम कहोगे बड़ा मीठा बोलते हैं। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो पुचकारे। वो तो जो बात कहते हैं ऐसी लगे जैसे कस के थप्पड़ पड़ा हो, क्योंकि परमात्मा इतना बनाकर भी कभी, इतना बड़ा बनाकर भी अकर्ता बना बैठा है। तुम छोटी छोटी दुकानों को संभाल कर भी कर्ता बन गए। बोलो, वो इतना बड़ी सृष्टि का निर्माण कर कर, इस ब्रह्मांड को बनाकर, इसमें छोटे मोटे चुल्लू जैसे सागर और आकाशों को भी समेट सकता है, तो भी वो अकर्ता बना बैठा है। लेकिन हम छोटे छोटे अपने गृहस्थ, अपने घर बना लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं। एक छोटा सा घर बनाकर एक आदमी गृहस्थ बन जाता है, और उन सबको बना लेने के पश्चात भी परमात्मा जो है वो सबसे ऊपर उठा रहता है, अकर्ता बना रहता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। अगर ये पागलपन नहीं हो तो आप बताओ इसको कैसे परिभाषित करोगे। इस विराट संसार के जाल को खड़ा कर कर परमात्मा वैसा का वैसा रह जाए, और आप अपनी एक छोटी सी दुकान को, छोटे से व्यापार को बनाओ और उसमें नष्ट हो जाओ। यही तो हो रहा है। हम सारे नष्ट हो गए क्योंकि हमें हर छोटी सी चीज में, आइए आपको दिखाऊं अपनी क्रिएटिविटी, ऐसी तो इनवाइट किया जाता है। जब आपने कोई चीज करी हो तो आप कहोगे आइए 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 आपको दिखाएं हमने आज क्या क्रिएट किया। अरे तूने क्या क्रिएट किया? जिसने क्रिएट किया था वो अकर्ता बना बैठा है। तू अपनी छोटी मोटी चीजों को उसी की द्वारा सामग्री से बनाकर क्रिएटर बन रहा है। उसको कहां से समझ में आएगा? That person will never understand the depth of the Purnamadaha Purnamidam. और आप समझना, गृहस्थ हम किसे कहते हैं? गृहस्थ कौन है? यहां जितने बैठे हैं सारे गृहस्थी तो हैं। इन सब की, इन गृहस्थी की भाषा में, ये गृहस्थी की भाषा में गृहस्थ शब्द को अगर परिभाषित किया जाए कि पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, हम सारे मिलजुल कर एक घर में रह रहे हैं, अब हम गृहस्थ हो गए, कि ब्याह हो गया इसलिए हम गृहस्थ हो गए, नहीं नहीं। अरे बड़े से बड़ा सन्यासी तुम्हें गृहस्थ दिखा दूं, बड़े से बड़ा महात्मा, महामंडलेश्वर, बड़े से बड़े आश्रमों के जो स्वामी जी हैं, वो भले ही बाहर से सन्यासी का वेश धर कर बैठे हों, लेकिन अगर आपका एक बार उनसे मिलना हो जाए तो आप कहोगे धिक्कार है, हम तो छोटे मोटे गृहस्थ हैं, ये बहुत बड़े गृहस्थ हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की डेफिनेशन बदल जाती है। गृहस्थ की डेफिनेशन क्या है? गृहस्थ, मैं उसे सोचता हूं जो पल पल, हर बात में, हर पल, हर क्षण में ये कहे कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, देखो मेरी तरफ से ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। जिस पल तुम्हारे मुंह से मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुमसे बड़ा गृहस्थ कोई नहीं है। और सन्यासी कौन है? वो इस सारे आनंद के भीतर लेकर कहे कि घट रहा है, हो रहा है। आज के इस एक घंटे के, जो मैं आप चाहता हूं आपके 23 घंटे पर भारी पड़े, इफ यू कैन स्टार्ट लिविंग विद दिस थॉट, जिएंगे कैसे? क्योंकि आप समझो, अगर अभी भी हम इस पूरे 9 मंथ्स कोविड-19 के दौरान अलग अलग टॉक्स करें और टॉक करके मैं निकल जाऊं 2 महीने, आपको अब आप कौन सा नया सीरीज चालू करोगे? तो आप समझना, पहली वाली उतरी नहीं,
तो पहली वाली गई कहां? यानी इंफॉर्मेशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन क्या, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा अपने आप में एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कि टेस्ट करना पड़ेगा। समय एक छोटा सा काम करके देखें अपने अपने घर पर, गृहस्थी में रहते हुए, आप अपने परिवार के साथ रहते हुए, उन्हीं के बीच में एक छोटा सा काम करें कि जो भी कुछ हो रहा हो कि मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी कुछ आपके घर में घट रहा हो, जो भी कुछ वार्तालाप हो रहा हो, जो भी बन रहा हो, जो भी कुछ खब रहा हो, जो भी कुछ पचने में आप कहते हो मैं कर रहा हूं, हो रहा है। और जब आप कहते हो कि अपने आप हो रहा है, आप कहते हो श्वास आपको लेनी पड़ रही है, हो रही है। जब आप श्वास में नहीं कहते कि मैं ले रहा हूं, जब आप पचने में नहीं कहते कि लघु शंका दीर्घ शंका में नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब घट रहा है, तो इसलिए अपने घर में जीते जी छोटी छोटी कामों में उस अहम को डालना छोड़ दो और उस पल कहना प्रारंभ कर दो कि हो रहा है, होने दो। तब समझ में आएगा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं क्या है। आज यहीं विश्राम लेते हैं, वैसे तो 5 मिनट शेष हैं। और देखो ऐसा है, बार बार आपको इनवाइट करूं, बार बार बोलूं, यू शुड कम आउट। मैंने क्या कहा, हेजिटेशन किस बात की? अगर मैं भी आपके साथ बहुत शर्मा के बातचीत करूं तो तुम्हें भी मजा आना है, ठीक है? तो लेट मी नो एनीथिंग so that we can more add up to the more experience to this Ishavasya Upanishad. हरि बोल, राधे राधे, कल मिलते हैं।